A big hello to class 11th going to class 12th, and how to handle chemistry in the boards of 2022, that is next year. Of course, this year was online and it was tough, but I would help you to sail smoothly as you move from class 11th to class 12th, even if you were not very good in class 11th. Fine. So let's move to the key points of class 11th which are required in class 12th. So moving on to chapter number 1. For the chapter number 1, you will be requiring molarity, molality, mole fraction and parts per million. These 4 concentration terms are required in class 12th chapter solutions. So if you have struggled with them, please watch the videos on my channel. I have done for each one of them. Coming to chapter 2 of class 11, you had structure of atoms. The most important topic out of it is quantum numbers, and that too, how to write the electronic configuration. For example, if I say that you need to write the electronic configuration for nickel 2 plus, which means you need to know the atomic number of nickel to be 28, तो मतलब बेटा 1 to 30 atomic numbers तो आपको याद होना चाहिए. Let's write the electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. अब it has to be 2 plus. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें. ये बात आपको 11th में कराई थी and it is required in class 12 chapter called as D block. So the 2 electrons are to be removed from here, and that's a common error. People remove electrons from here, which is incorrect. So this is to be mastered from chapter number 2. Moving to chapter number 3, that is periodic classification. The important topics required are anomalous properties of the first member. First member of each group is special with respect to absence of d orbitals, maximum multiplicity is 4, small size, high electronegativity, and tendency to form p-pi multiple bonds, which will be required in your P block of chapters in class 12th. You also require inert pair effect, which is done in the P block of class 11th, and it will again be required in P block of class 12th. Enthalpy of ionization, electron gain enthalpy. These 2 topics are very important. In fact, all these 4 topics are already on my channel and you can watch them if you have not done them well in class 11th. Moving to chapter number 4, that is chemical bonding. You have dipole moment, you have VSEPR theory. This is very important again to give you the shapes of the structures, and hybridizations. Out of these 3 topics, this particular topic, the video is already on my channel. You can watch it to master hybridization. Coming to molecular orbital theory, इसका बेटा बहुत ही थोड़ा सा चाहिए. That too only for oxygen molecule का अगर आता हो electronic configuration, then that much is enough. तो बस उतना कर लेना. Fine. So molecular orbital theory can kind of be ignored because बहुत थोड़ा सा ही चाहिए in class 12. Chapter 5 is states of matter. नहीं चाहिए. क्लास 12 में इसका कुछ भी नहीं चाहिए. चैप्टर 6 इज थर्मोडायनेमिक्स. इस चैप्टर में से सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज 2 चीजें चाहिए. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का न्यूमेरिकल आता है, और दूसरा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग इक्विलिब्रियम. फाइन. सो ये 2 फॉर्मूला अगर आपको आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के तो बात खत्म. थर्मोडायनेमिक्स में ये दोनों चीजें चाहिए इन क्लास 12. नेक्स्ट चैप्टर इज इक्विलिब्रियम. इस चैप्टर में से बेटा सिर्फ डी शैटलेस प्रिंसिपल कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा. नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. हाइड्रोजन चैप्टर कैन बी इग्नोर्ड. इज दैट ओके? कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिडॉक्स रिएक्शन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका सब कुछ चाहिए क्लास 12th में. बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाफ रिएक्शन मेथड. दोनों के लिए वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, यू कैन वॉच देम. एंड बैलेंसिंग के लिए यू विल रिक्वायर इट फॉर द टाइट्रेशन इन द लैब फॉर प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि आपकी टाइट्रेशन इन क्लास 12th इज रिडॉक्स टाइट्रेशन. तो बेटा बैलेंसिंग तो जरूरी है. गैल्वेनिक सेल इज टू बी डन इन डिटेल, जो कि कई बार 11th में नहीं कराते हैं क्योंकि 12th में करना है, पर कुछ स्कूल्स में ये अच्छे से कराते हैं. Whatever is the status, galvanic cell के बहुत सारे वीडियोस चैनल पे हैं. You can watch them and get a grasp of it.
क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर फुल एंड फाइनल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन क्लास 12th में चाहिए होगा। एस एंड पी ब्लॉक 2 चैप्टर्स थे। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 था, जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए क्लास 12th में। ग्रुप 13-14 में से मेनली इनर्ट पेयर इफेक्ट की रिक्वायरमेंट है एंड एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, वो मैं पहले बता चुकी। Coming to the most important fact, that is organic chemistry, और इसमें प्रॉब्लम है। The first is your general organic chemistry। इस चैप्टर में से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आती है बेटा, लेकिन इसकी वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स है इन क्लास 12th, तो अकॉर्डिंगली वर्क कर लीजिएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव, माइनस आई इफेक्ट, plus our resonance effect and minus are the resonance effect, plus carbocation, carbanion and free radical। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैनल में R प्लस R माइनस है, कार्बोकेटाइन, कार्बनाइन एंड फ्री रेडिकल भी है। ये दोनों नहीं है, दैट यू कैन डू इट फ्रॉम समवेयर। इज दैट ओके? जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, पर ये सब कुछ स्पेशली रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर एंड माइनस आर बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में से बेटा मार्कोनिकॉफ रूल वीडियो बना हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का भी वीडियो बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सेयर्ट-ज़ेफ रूल का भी वीडियो बना हुआ है। बेंजीन इज टू बी डन इन डिटेल, वो क्या है बेटा? उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन आपके सिलेबस में 4 है, केमिकल प्रॉपर्टीज अराउंड 6 हैं, तो ये 10 इक्वेशंस तो बेटा पक्का करना है, और ये क्लास 12th में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। उसके सिवा यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, जो कि आपको आना चाहिए, प्लस यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH एज अ रिएजेंट। इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमारे काम में आता है। नाउ मूविंग फर्दर, एक जिन्हें हमको डर लगता है वो है कन्वर्जन्स। माय एडवाइस इज कि बेटा कन्वर्जन से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ओनली कन्वर्जन्स व्हिच विल बी आस्क्ड इन क्लास 12th। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं सोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पर उनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? नेम रिएक्शन पर क्वेश्चन आता है, टू राइट द रिएक्शन। कंप्लीट द इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, जिसके लिए आपको रिएजेंट बेस्ड स्टडी आना चाहिए। A goes to B goes to C goes to D में रिएजेंट बताओ, दैट इज रिएजेंट बेस्ड स्टडी भी आता है। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 थिंग्स, जैसे हमने 11th में किया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, टर्मिनल एंड नॉर्मल एल्काइन, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल टेस्ट आता है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। उसके सिवा यू हैव अ लॉट ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब बेटा ये सारे करने के बाद तो कन्वर्जन की बारी आएगी, तो ऑर्गेनिक से डरने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में यू हैव नेम रिएक्शन, complete the equations, ABCD types, chemical test to distinguish, reasoning questions बहुत सारे आते हैं, plus there is also a part of mechanism of a reaction can also be asked। तो बेटा एग्जामिनर सब कुछ पूछता है, सिर्फ कन्वर्जन नहीं पूछता, और जब आपको ये सब आता है ना तो आप कन्वर्जन कर ही लेते हैं। फाइन, आई होप आई हैव हेल्प्ड यू आउट हाउ टू हैंडल क्लास 12th केमिस्ट्री, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्लास 11th में से बहुत कुछ क्लास 12th में जाएगा। तो अगर आपका केमिस्ट्री क्लास 11th was not good, then please spend some time, give some time to these particular topics, and to help you out, there are videos on the channel which you can watch and master chemistry and do awesomely well in chemistry. Also, please follow me on Insta for any updates on the new videos. Fine. Thanks a ton. Bless you loads. Do very well in life. Bye.